اور میری خوش قسمتی ہے کہ آج آپ اس اچھے موقع پر جمع ہوئے ہیں. ہم سبوں کے لیے ہی نہیں صرف، بلکہ ہمارے مسلم پڑوسیوں اور بھائیوں بہنوں کے لیے بھی ایک دکھ کا وقت ہے. جیسے جیسے ہم یوٹیوب دیکھتے ہیں یا خبریں سنتے ہیں یا عزیز ادھر سے آئے ہیں انہوں نے، تو میں شخصی طور پر 3-4 بار میں رویا ہوں. ابھی بھی چرچ میں پاکستان کے سارے چرچ میں دعائیں ہوئی ہیں اور لوگوں نے چرچز میں عبادت گاہوں میں آنسو بہائے ہیں. ابھی میں عبادت گاہی سے آ رہا ہوں، وہاں پر بھی دعا کرتے ہوئے لوگوں کے آنسو نکل رہے تھے. ایک خاتون تو بہت دھاڑے مار کے رو رہی تھی. ہم اس دکھ کا علاج اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک اس کینسر کی جڑوں کو اس بدن سے نہیں نکالا جائے گا. پاکستان بننے کے لیے تھوڑا سا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان بننے کی وجوہات کیا تھی. ہم سب تاریخ سے واقف ہیں. جب سے سوشل میڈیا ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے ہم ان ساری باتوں سے مکمل طور پر آشنا ہیں کہ انڈو پاک یعنی بڑے صغیر میں 2 بہت بڑی جماعتیں تھیں. ایک ہمارے مسلم بھائی اور ایک ہندو، اور ہر وقت ان کا ٹکراؤ رہتا تھا. اور اسی بیس کے اوپر ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح نے اس جماعت کو آرگنائز کیا اور ملک برطانیہ سے تحریک چلا کر اپنا ملک بنایا. اور اس کے پیچھے بہت سے ہماری نیو جنریشن یہ نہیں جانتی کہ پاکستان کو بنانے میں تقریباً 50% حصہ مسیحیوں کا ہے. اور اس بات سے ہمارے جو تعلیمی اساتذہ ہیں جو تاریخ سے واقف ہیں ان کو نہیں بتاتے آنے والی نسل کو کہ پنجاب اگر مسیحیوں کے ووٹ سے اس خطے کے ساتھ نہ جوڑا جاتا تو آج پاکستان وجود میں تھا. اور وہ سیاسی لیڈر جو مسیحی لیڈر تھے انہوں نے سکھوں کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے. میں یہ ساری سٹوری اگر بتاؤں اور حقیقت اور تاریخ بتاؤں تو وقت نہیں ہے، لیکن میں صرف اہم باتیں یہاں پر یاد کرانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی مدرسوں میں، اپنی دینی جماعتوں میں، اپنی تاریخ کے ان ارواق میں، ان سلیبس میں یہ بات بتائیں کہ مسیحیوں کا اس میں حصہ ہے. کو یہ نہیں بتائیں گے اس وقت تک اس ملک میں یہ فساد ہوتے رہیں گے. جب کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے ہمارے رہنما، ہمارے مذہبی، ہمارے حاکم، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، منسٹرز ٹیلی ویژن کے اوپر آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم ایسا کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے، ہم دیکھیں گے یہ کون کرتا ہے. لیکن کرنے والے آ جاتے ہیں، کر کے چلے جاتے ہیں اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا، صرف لکیر کو پیٹتے رہتے ہیں. آج مجھے اب کسی نے بتایا کہ
साहिवाल में भी एक छोटा सा इसी तरह का वाक़या पेश आया है। ये क्या हो गया है? हमारी आने वाली जनरेशन जब तक ये नहीं जानेगी कि मसीहों ने पाकिस्तान में तालीमी मैदान में इब्तदाई दौर में जब पाकिस्तान वजूद में आया तो मसीहों ने तालीम के मैदान को जिस तरीके से खोला और तालीम दी, वो मिशन स्कूल की खिदमत से नावाकिफ हैं, वो मिशनरी कॉलेजेस की खिदमत से नावाकिफ हैं, वो मिशनरियों की तालीम के सिस्टम से जो उन्होंने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया उनसे नावाकिफ हैं, वो सेहत के मैदान में जो मसीहों ने खिदमत जी वो उनसे नावाकिफ हैं, इसलिए वो उनकी खिदमत को जानते नहीं हैं। और मैदान जंग में जितनी भी जंगें हुई, 3 जंगें हुई, उन तीनों में जो पाकिस्तान के एयरफोर्स में और जो फौज में, तीनों फौज में जो पाकिस्तानी मसीहों ने, अक़लियत के मसीहों ने नहीं, पाकिस्तानी मसीहों ने अपने मुल्क को बचाने के लिए जो जानें दी और जो कुर्बान हुए और जो दुश्मन के जो बनाए हुए सारे मंसूबे थे उनको खाक में मिलाकर वापस जिंदा लौटे। उनमें से एक पायलट जो मुसाफिर जहाज होता है सिसल, उसने क्या किया? उसने बमबार उसको कन्वर्ट किया, वहीं किसी फैक्ट्री में लेके नहीं गया, एयरपोर्ट के ऊपर उसने कहा इस जहाज को मैं बम्बर जहाज बनाना चाहता हूँ। उसने डिज़ाइनिंग दी, तारीख पढ़ें, तारीखें और तारीखों और हमारी जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनके अंदर से इन सारे जो मसीही पाकिस्तानी हीरो हैं उनको शामिल किया जाए ताकि उनको पता चले कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स ने तालीम देने में और तालीम याफ्ता लोगों ने अपना अहम रोल अदा किया है। ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ये मामला काबू में नहीं आ रहा। मुझे पता है, हम सब इस बात से वाकिफ हैं, सारे हमारे मुस्लिम भाई से नहीं हैं, कुछ हैं शरर हैं, मुल्क का अमन खराब करना चाहते हैं, वो दुश्मन का हथियार बनते हैं। मैंने 66 में जब मैंने मैट्रिक किया सियालकोट में, सबसे पहला वहाँ पर वाक़या पेश आया। मरे कॉलेज में सिर्फ किसी टीचर ने इस्लाम के खिलाफ कोई बात की या नहीं की, ये आज तक नहीं साबित हो सका। लड़के गए लाइब्रेरी में जाकर उन्होंने बाइबलों को फाड़ा, बाइबलों को जलाया। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। 1966 की बात कर रहा हूँ। उस वक़्त से क्या क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स की खिदमत कम है? मिशनरी जो यहाँ आए, क्या कभी आप में से कुछ ऐसे हैं जिनको पता नहीं होगा कि रावलपिंडी के कोड़ी हॉस्पिटल में जो यहाँ पर मिशनरी खातून आई, वो 14 साल की थी जब उसने आकर यहाँ इंडिया नहीं गई, वो पाकिस्तान में गई ताकि यहाँ का कोड ख़त्म करे। काश के कोई अब यहाँ से कोई नया नौजवान मुस्लिम मेरा बेटा मेरा भाई उठे जो पाकिस्तान के अंदर ये कोड है इसको ख़त्म करे, क्योंकि ये बहुत बुरा कोड है जो लगा हुआ है। हर रोज़ हर महीने कोई ना कोई बात उठती है। मुश्किल से 2 महीने गुजरते हैं, मुश्किल से महीना गुजरता है। हमारे सियासी लीडर गोली का निशाना बने, हमारे फादर्स, हमारे पादरी साहबान, हमारे बहुत से प्रोफेसर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, ये जो हमारे पास ये भी वाक़या पेश हुआ था दहशतगर्दों ने जी
मिशन हॉस्पिटल टेक्सला में आके बम ब्लास्ट किया था। क्या हम पेशावर के हॉस्पिटल का, क्या हम बनू के हॉस्पिटल का, किसका, कहाँ तक सुनोगे और कहाँ तक सुनाओ वाली बात है। बहुत दुख है मेरे अजीजों, मैं आप सबसे मिन्नत करता हूँ, आप कुछ करें हमारे लिए। जब तक आप अपने दिल में ये तहैया नहीं करेंगे कि हमने कुछ करना है और आपने सिर्फ अपने यहाँ पर फैसला नहीं करना, उसको आगे तक पहुँचाना है। अगर सारे पाकिस्तान में सियासी लीडर, मजहबी रहनुमा और हुकूमत में जो काम करने वाले लोग हैं, वो जब तक एक होकर इस कोड को नहीं साफ करेंगे, इस जहर को बदन से नहीं निकालेंगे और इस बदन को बिल्कुल साफ करेंगे, उस वक्त तक कोई भी इस मुल्क को साफ नहीं कर सकता। मैं आप सबका एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ। इतनी गर्मी में आपने मेरी थोड़ी ज़्यादा ही गर्म तकरीर हो गई है, वो सुन ली है। मैं इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वजह ये है कि मेरा दिल बहुत उदास है। हमारा प्रोग्राम बना हुआ था कि जाना था परसों, कुछ कॉलेज और स्कूलों वालों ने प्रोग्राम बनाया था, सारे गए हैं नारायण का खान, लेकिन मैंने कहा मैं बहुत परेशान हूँ, मैं नहीं जा सकता इस जलसे के बारे में शामिल होना था। मैं एक बार फिर हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैंने आपका ज़्यादा टाइम लिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बराए मेहरबानी मेरी इस बात को किसी जगह तक लेकर जाएं। फिर मज़ा है, फिर बामकसद ये मीटिंग बामकसद इज्तिमा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।